how you are supposed to do the answer writing at the initial level. Initial level पे कैसे करोगे? What we are going to focus? We are going to focus on how the structure of our answer should be. First thing, whenever you are attempting any question, do not write this as an intro. ऐसे intro कि मैं intro लिख रही हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं लिखना. You have to directly start with the paragraph. So once you write the paragraph, the first paragraph is considered as your introduction. You have to make sure that you are just putting all the points in one single heading. ऊपर से 10 marks का question है तो avoid different types of different number of headings. Toppers के answer sheets भी देखोगे तो उनके 100, 110, 130 के ऊपर जाते नहीं है हर एक जीएस में, ठीक है? दैट मीन्स half of the marks only you secure. ठीक है, तो यहाँ पे भी आउट ऑफ 10 आई जस्ट गेट 5, 5.5. तो यहाँ पे मुझे 1 मार्क मिल गया, यहाँ पे 1 मार्क मिल गया. बिगिनिंग माई इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो गुड, माई कंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी गुड. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सिक्योर दोस 3 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए, करेक्ट? सो ये 3 मार्क के लिए अगर हर एक पॉइंट जो मैं लिखूंगी उसको अगर मुझे 0.5 मार्क्स में मिल गए, सो आई शुड हैव मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स हियर, correct? Okay, so it's just an approach about how this answer writing will begin, how you are supposed to do the answer writing at the initial level. ठीक है, initial level पे कैसे करोगे? What we are going to focus? We are going to focus on how the structure of our answer should be. Okay, that's going to be our focus. What should be the content in Samachar Manthan? In the initial phase, this should not be an issue because I have already told you कि समाचार मंथन आंसर करने के टाइम पे you can just copy the content and write in the initial phase, right? This is what I have told to everyone. Okay, even if you are doing GS answer writing, even if you are attempting any PYQ, if you are into that mains phase and you are not able to collect the content, then you can simply research, you can simply go through your books, go through your notes and write the answers. Why? Because first you have to understand the skills of taking the whole content in front of you and placing it in the answer format. Okay, that's what we are going to see. Now, everyone is going through some similar kind of issues, similar kind of problems. So I had to take this together, this session, so that I can address the common issues. Okay. I have already shared one of the Samachar Manthan initial approach video. I think some have ignored that. पता नहीं क्यों, but जिन्होंने देखा है उनके लिए even those they are also facing some issues, but इसलिए I'm trying to make sure कि इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है? So I'll just share this with you. Okay. So let's start with this answer writing session with an example of the recent June week 3 Samachar Manthan. I hope that some of you have written this answer and some will be aware about this. But I'm just going to make sure that you know how to actually put this answer into. Okay. So the question states, discuss the structural and regulatory deficiencies in aviation safety oversight India. And this is a 10 marks question. Okay. Now for some people who think कि मेरे पास तो content ही नहीं है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, and then how will I answer these questions? Now this is a very generalistic question. ठीक है, you don't have to be very much aware about okay what I have to write, what I have to do, all of these things. Okay, this is a very general question. Now someone from you tell me what is this question all about? Anyone? आई एम नॉट आस्किंग यू कि कैसे आंसर लिखना है, बस बता दो कि क्या किसके बारे में क्वेश्चन है, कैसे आंसर करना है, ऑल ऑफ दीस थिंग्स. Recent discrepancies in the Air India, right? Right. So what are they asking? They're asking about like why did it happen and what are the safety measures that have to be taken. Yes. Right. So this is the news that everyone is aware about, right? You know about this thing. अगर आप ऐसे ही किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो तो आप इस चीजों पे बात भी करोगे कि क्या कमियां है एविएशन सेक्टर में इन इंडिया, व्हाट थिंग्स आर बीइंग इग्नोर्ड इन इंडिया, राइट? सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू इनिशियली पुट डाउन. ठीक है, इसके लिए कुछ बहुत डेप्थ नॉलेज होना चाहिए ऐसा नहीं है. Okay, so let's start with how are we going to attempt this question. So in the introduction, what are we going to write about? What should be the introduction all about?
And first thing, whenever you are attempting any question, do not write this as an intro. ऐसे intro कि मैं intro लिख रही हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं लिखना. You have to directly start with the paragraph. So once you write the paragraph, the first paragraph is considered as your introduction. ठीक है? So what will be in the introduction? We We can are write about discussing. yes, recent news about a crash Yes. Okay. One thing is that you can write about recent crash. or data about major two accidents per decade in Okay. India. The recent crashes and major data. Okay. What else? If you don't know, if you are not able to remember the recent crash, ठीक है, या major data नहीं याद आ रहा है. In this situation, what will you write? Definition maybe of aviation safety and why it's important. So, little bit louder. Definition of the, what is aviation safety and why is it important? Okay, cannot write about the definition, but yes, we can write about the aviation sector in India. ठीक है, उसका भी डेटा आ जाएगा कुछ ना कुछ तो. Correct? Okay, so understood. We can write about the recent crash. We can write about the aviation sector, whichever thing pops up in your head first, जिसके बारे में तुम्हें पता है. Now, this is a recent crash, अहमदाबाद वाला crash. तो उसके बारे में आपको पता रहेगा. Everyone will be knowing, so you can write it directly. And this is why the question is framed, right? So it is expected that you know this, and so you're going to write about it. Okay. So how will you frame this? भी बता दो. Now, this is a 10 mark question. How much lines should be this introduction? Yes, Swati. Ma'am, can we write Airbus and Boeing companies making the airplane Indian companies? थोड़ा थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो क्या बोलना चाहते हो. Ma'am, Boeing and Airbus companies are manufacturing company which make the airplane. उनके क्रैशेस ज्यादा हो रहे तो आप वो लिखना चाहोगे. और मैं जैसे बोइंग कंपनी का था एयरप्लेन जो क्रैश हुआ अहमदाबाद में, तो मैम इसे कर सकते हैं मेंशन. मेंशन कर सकते हो पर इंट्रोडक्शन में नहीं, क्योंकि फिर वो ऐसा लगेगा कि तुम जो रीसेंट क्रैश हुआ है उसका जो जिम्मेदार है या जिसकी वजह से हुआ वो बता रहे हो यहाँ पे, है ना. हमें वो नहीं बताना है, हमें एविएशन के बारे में बताना है और एविएशन सेफ्टी के बारे में. तो तुम ये लास्ट लाइन में मेंशन कर सकते हो कि रीसेंट क्रैशेस हैव बीन रिलेटेड टू दीज टू बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. ठीक है, ये लग सकते हो पर इंट्रोडक्शन पूरा उनके बारे में नहीं होगा. ठीक है, पहले इनिशियली तुम कुछ लिखो उसके बारे में, क्रैश के बारे में या फिर एविएशन सेक्टर कैसा है इंडिया में वो. ओके. यस. सो वी कैन राइट कि जो द रीसेंट मिसहैप ऑफ विच वाज दिस फ्लाइट. AI 171. Yes, AI 171 to from Ahmedabad, right? Is under scrutiny due to the ignorances of the किसके ignorances की वजह से? Aviation safety. DGC. Aviation sector witnessed under the rapid expansion. बहुत expansion हो रहा है अभी हाँ. aviation sector का, right? तो this is happening on the one side and there is this ignorance due to the or witnessed under this rapid expansion, which highlights the deficiencies in the structural and regulatory deficiencies, या फिर आप लिख सकते हो which highlights the deficiencies in aviation sector. Regulatory और structural लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so this can be covered up in 3 to 4 lines. ठीक है, इसमें आपने रीसेंट क्रैश भी मेंशन कर दिया, आपने बोल भी दिया कि रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, एंड आपने ये भी बोल दिया कि डेफिशिएंसीज है.
Fine? Everyone Yes, is ma'am. with me? Yes. I need a yes from everyone. Yes, अगर आप ma'am. सुन रहे हो तो प्लीज yes बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Okay. So now you one by one have to tell me this. ठीक है? पहले तो बताओ कि once this introduction is done, we have to start our main body, right? तो अभी body चालू हो रही है, ये कैसे बताओगे आप? You have to make a heading. ठीक है? You have to make a statement heading here. Now, what will be the heading? The heading will be the demand of the question. You have to identify the demand of the question. अभी हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए आइडेंटिफाई कर दिया कि एविएशन सेक्टर के बारे में और रीसेंट क्रैश के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे. Right? Now we have to identify what the question is all about. Okay, so the question is कि हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी डेफिशिएंसीज. राइट? यही क्वेश्चन है ना? चैलेंजेस पूछा है, ग्रोथ पूछा है, सिग्निफिकेंस पूछा है. हैज दैट बीन आस्क्ड? Yes, ma'am. नहीं, आई एम आस्किंग इज सिग्निफिकेंस, रैपिड एक्सपेंशन, ये सब कुछ पूछा है या स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी डेफिशिएंसी पूछा है? सिर्फ डेफिशिएंसी वही पूछ पूछा है, structural and Efficiency, regulatory. right? Yes. Okay, they have not been asked, not asking us कि कितना एविएशन सेक्टर में इंक्रीज हो रहा है बताओ, क्या क्या स्कीम्स लगी है बताओ, ये नहीं पूछा जा रहा है. तो फर्स्ट एड्रेस व्हाट हैज No. बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ओके, बाकी चीजें बाद में ऐड करो. पहले address the demand of the question. So the demand is structural and regulatory deficiency. So your heading should state the structural and regulatory deficiencies in aviation safety. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो ये आएगा आपका हेडिंग. अगर यहाँ पे पूछा जाता अभी फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी आर सम ऑफ द सेम थिंग्स. ठीक है, इसमें आप डाइफरकेट नहीं कर सकते, बाइफरकेट नहीं कर सकते. स्ट्रक्चरल ये है, रेगुलेटरी ये है. ठीक है, पर समझो आपको पूछे गए कि पॉलिटिकल डेफिशिएंसी और स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज बताओ. ठीक है, नाउ दीज आर टू डिफरेंट डायमेंशंस व्हिच यू कैन टेल इनटू डिफरेंट पॉइंट्स. तीन तीन पॉइंट्स बता सकते हो हर एक चीज के. ठीक है, तो इसके टाइम पे आप अलग अलग हेडिंग्स लिखोगे. यहाँ पे स्ट्रक्चरल डालोगे, इसके 3 पॉइंट्स, और फिर एक और हेडिंग डालोगे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे पॉलिटिकल रीजंस दोगे. ठीक है? Yes, ma'am. ओके, सो बट यहाँ पे पूछा नहीं है. एंड ऑल्सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉर्ट आउट कि अगर 5 पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में तो वो स्ट्रक्चरल कौन से और रेगुलेटरी कौन से. ठीक है, if they have asked discuss the political and structural deficiency on in aviation safety, हाँ, then it is very much good if you put two different headings. तो वो दिखाएगा कि आपके dimensions कितने sorted है. ठीक है, ये दिखाओगे आप, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पॉइंट्स दिखाओगे. बट यहाँ पे पूछा है structural and regulatory which is one and the same. You have to make sure that you are just putting all the points in one single heading. ऊपर से 10 marks का क्वेश्चन है तो avoid different types of different number of headings. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया और समझो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल. ओके, तो मुझे यहाँ पे 1 मार्क आ गया और मुझे यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गए. ठीक है, ना आउट ऑफ 10 मार्क्स व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट आई विल गेट? 5 to 6. 7 नहीं 6 जाता है. maybe. 5 to 6. 6 is Six. a very Average rare five. chance. ठीक है, 5 ज्यादा marks. से ज्यादा yes 5 to 5.5. दिस इज द मैक्सिमम एंड द मोस्ट गुड स्कोर दैट यू विल डू. ठीक है, इसलिए आप समाचार मंथन लिख रहे हो और आप अगर आप टॉपर्स के आंसर शीट्स भी देखोगे तो उनके 100, 110, 130 के ऊपर जाते नहीं है हर एक जीएस में. ठीक है, दैट मीन्स हाफ ऑफ द मार्क्स ओनली यू सिक्योर. ठीक है, तो यहाँ पे भी आउट ऑफ 10 आई जस्ट गेट 5, 5.5. तो लेट्स कंसिडर 5 इज माई हाइएस्ट. ठीक है, मेरे हिसाब से. तो यहाँ पे मुझे 1 मार्क मिल गया, यहाँ पे 1 मार्क मिल गया. बिगिनिंग माई इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो गुड, माई कंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी गुड. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सिक्योर दोस 3 मार्क्स. ठीक है, 5 मार्क्स के लिए, करेक्ट. सो ये 3 मार्क के लिए अगर हर एक पॉइंट जो मैं लिखूंगी उसको अगर मुझे 0.5 मार्क्स में मिल गए, दैट मीन्स हाउ मेनी पॉइंट्स शुड बी देयर इन माई बॉडी? 6. 6.5. Yes. Right. So I should have minimum
5 to 6 points here. Correct? Got it? तब जाके मुझे इतने मिलेंगे. तुम 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स लिखोगे तब इतने मार्क्स नहीं आने वाले. हर एक पॉइंट को 1 मार्क नहीं मिलेगा. ठीक है. अगर यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे 2 डिमांड है. अगर यहाँ पे उन्होंने पूछा है स्ट्रक्चरल रेगुलेटरी डेफिशिएंसी भी बताओ और चैलेंजेस भी बताओ या गवर्नमेंट मेजर्स भी बताओ. इफ दे हैव टोल्ड दैट मीन्स यहाँ पे मेरे 4 पॉइंट्स आएंगे, फिर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को मेरे 4 पॉइंट्स आएंगे. ठीक है. देन आई डोंट हैव टू राइट 6-7 पॉइंट्स फॉर ईच हेडिंग. क्यों? बिकॉज मेरे मार्क्स यहाँ पे बाइफर्केट हो जाएंगे. बट यहाँ पे एक ही पॉइंट है, एक ही हेडिंग है, मतलब यहाँ पे आई हैव टू राइट एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स. तब जाके मुझे ये मार्क्स मिलेंगे. एंड देन आई बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट 5 मार्क्स. क्लियर दिस इन योर हेड? कितने पॉइंट्स लिखने हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोसीडिंग फर्दर. म्यूट कर दो प्लीज. Okay. So now coming to structural and regulatory deficiency. Now you don't know anything about the aviation sector. आपको नहीं पता है. मैंने नहीं पढ़ा एविएशन सेक्टर के बारे में. तो भी आपको क्रैश के बारे में पता है. घर पे चर्चा हुई रहेगी, घर पे बातें हुई रहेंगी, किसी की भी सुनी रहेंगी, या फिर खुद थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे हम इस चीज पे. दैट ओके इफ देर आर सो मेनी एक्सीडेंट्स हैपनिंग रिसेंटली, या अगर समझो कि एक ही एक्सीडेंट हुआ है बहुत सारा, तो भी देर इज सम डेफिशिएंसी, देर इज सम इश्यू विद दैट. तो क्या इश्यू होंगे? हम बोलते हैं ना कि अरे उन्होंने ये करना चाहिए था, ये नहीं किया इसलिए ये हो गया. ठीक है. तो ये व्हाट आर दीज थिंग्स वी शुड ट्राई टू थिंक. तो टेल मी व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू हियर अबाउट दिस मिशन, कि क्या करना चाहिए था? व्हाट वाज द लैप्स इन द रेगुलेटरीज? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर किसका? उसका एयरपोर्ट. ओके ठीक है, चलेगा. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. मैन्युफैक्चरिंग डिफिसिट. ठीक है चलो मैन्युफैक्चरिंग. बट वी कैन से कि मैन्युफैक्चरिंग डिफिसिट अगर होता है तो फर्स्ट फ्लाइट में ही हो जाता ना. Regular maintenance of flight. राइट. मैन्युफैक्चरिंग या फिर रेगुलर मेंटेनेंस लिख सकते हैं. सो व्हिच Then runways are not properly maintained. जस्ट अ सेकंड, आई राइट इट डाउन. रेगुलर मेंटेनेंस. ठीक है. रनवेज. रनवेज के बारे में क्या बोला था? Runways are not properly maintained. ओके चलो रेगुलर मेंटेनेंस में ही आ जाएगा वो. Poor What else? connectivity. Poor connectivity is a aviation sector issue, not why crashes are happening or accidents are happening. See, this is the basic one more Inadequate difference. pilot Now- fatigue management. Not able to hear you. Accountability and transparency. Accountability and transparency, but you should be very specific. Accountability or transparency और mishap का या aviation Ma'am. safety का. Ma'am, pure execution of Pilot past fatigue reports. management. Once again, poor execution of. Past reports. Correct. Poor execution of past reports or failures. Yes, next. Institutional Ma'am, following. proper scrutiny of the aircraft before the takeoff. Okay, तो the और safety protocol execution. Ma'am, again, institutional following means lack of trained professionals. Lack of proper technical knowledge. That only. Lack of professionals in aviation sector. Correct. और technical knowledge. ठीक है. What else? Politicization of appointments. इसी में आ जाएगा. बिकॉज अगर अपॉइंटमेंट पॉलिटाइजेशन हो रहा है मतलब कि नॉन टेक्निकल पीपल आर बीइंग अपॉइंटेड, राइट?
तो दैट्स व्हाई दिस लैक। नहीं तो अगर टेक्निकल पीपल है मतलब कि उनका एग्जाम होगा, उनकी स्क्रूटिनी होगी, उनका नॉलेज चेक किया जाएगा, राइट? यस, गुड। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर नॉट, हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते। हाँ, वो बोल रहे हैं ना यहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। And monopoly of few airlines which hamper its accountability. Monopoly is hampering the Accountability. 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 ठीक है, what else? Overruling ICA rules, international rules. ओ, क्या क्या? ICAO rules. मैम वो उसके क्या बोला? ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि these are very, ओवरलैपिंग जरूर। यस these are the, कौन सा एक्ट है एविएशन सेक्टर का? एक्ट कौन सा है? एयरक्राफ्ट एक्ट। Uh, 13. आउटडेटेड पॉलिसीज है, यस मैम। राइट? एयरक्राफ्ट एक्ट आई गेस 1934 का है, रूल्स 37 के हैं, 1937 के, राइट? सो दीज आर वेरी आउटडेटेड वंस। व्हाट एल्स? failed to enforce basic safety norms. कर दिया वो हमने ऐड, बेसिक सेफ्टी। एनीथिंग Lack एल्स? lack of public scrutiny. लैक ऑफ Public scrutiny. पब्लिक स्क्रूटिनी? It is not covered in RTI. Fully not covered in RTI. बोल सकते हैं, बट स्ट्रक्चरल रेगुलेटरी डेफिशिएंसी में वो नहीं आएगा। चलो लिख देते हैं, ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक स्क्रूटिनी। And poor policy measure for MRO industry. पॉलिसी? Poor policy measure for MRO industry. ओके, पुअर पॉलिसी मेजर्स, ठीक है। Ma'am, poor leadership appointments. ओवर? Like poor leadership appointments. ओके, वो तो यहाँ पे आ जाएगा कि लैक ऑफ, Like, oh, कि वी कैन इंक्लूड दैट इन योर आल्सो। mm. Lack of professionalism in DGCA. Over bureaucratization. अथॉरिटी फेलियर, ठीक है, गुड। ओके, ठीक है। So now that everyone has brainstormed on this, so we got how many? Almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 points. ठीक है, 10 से थोड़ा ज्यादा है पर वो ओवरलैप हो जाएंगे। So 10 points. How much do we need? 5 to 6. 5 points. 6 बहुत हो गए, right? So this is how you have to brainstorm yourself. Now this is possible in this question. Some questions need technical knowledge. तो ठीक है ना, पढ़ लो, कंटेंट तुम्हारे सामने होता है, गूगल करो, चैट जीपीटी नहीं करो, बुक में से पढ़ो, and then understand the concept and then start brainstorming yourself. What will happen is, next time whenever you read such question which is of your general knowledge or general science, you can brainstorm yourself. जो सारे questions, जो सारे कंटेंट आप पढ़ोगे मेंस के लिए हो, प्रीलिम्स के लिए हो, ये सारी चीजें आपके मेंस में आएंगी ही नहीं। There will be some things which are familiar to, but more of the things will be non-familiar. And तभी आपको brainstorm करना है। Okay, so this habit of brainstorming on each and every question बहुत active करेगा brain को, and this is going to help you in your mains, in your essays, in ethics, everything. Okay, got it? अभी poor infrastructure लिख दिया. This should be your heading, subheading, your first point, and then you have to explain here what do you mean by poor infrastructure. When you say कि poor execution of past reports and failures, you have to give examples and you have to say कि मतलब इतने हो रहे हैं failures and these were ignored, right? So then you have to give examples कौन से recent हुए हैं। Okay, अगर Boeing के सबसे ज्यादा हो रहे हैं, then they should have at least make sure that they are scrutinizing and following each and every safety protocol, right, before the flight.
लैक ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल नॉलेज, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, ट्रेन प्रोफेशनल्स नहीं अपॉइंट किए जा रहे, बिकॉज ऑफ दैट देर इज दिस गैप ऑफ टेक्निकल नॉलेज which leads to such accidents, right? So there should be a formal recruiting process and it should be followed. So यहाँ पे authority failure होता है, right? Yes. Okay. Then monopoly, accountability, overlapping, outdated policies. यहाँ पे लिखो कौन सी policy, lack of public scrutiny, poor policy measures. Okay, इतने सारे measures आते हैं. Again, one more point is no compliance with international standards. आजकल हर एक चीज के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, राइट? सो ऑफ कोर्स फॉर एविएशन सेक्टर आल्सो देयर आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स व्हिच आर ओवरसाइटेड बाय द अथॉरिटी, नहीं देखे जाते ये. अंडरस्टूड? नाउ दैट यू हैव 10-15 पॉइंट 10 to 12 पॉइंट्स, एटलीस्ट 6 पॉइंट्स याद आ सकता है आपको, एंड देन यू कैन राइट दीज. यस, इट्स पॉसिबल. Yeah. बस यही Yes, करना है ma'am. हमें, ठीक है? Yes, ma'am. अभी the general mistake that we do here is my voice being repeated. No, no. No, ma'am. ठीक है. हाँ. क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो अभी जनरल मिस्टेक व्हाट यू गाइस डू इज हियर कि यू राइट द सब हेडिंग, यू राइट द फर्स्ट पॉइंट, समझो आपने लिख दिया पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, देन यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू मच. 5-6 लाइन्स उसमें एक्सप्लेन कि देयर इज सो मच पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एविएशन सेक्टर. नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है? वाई यू डोंट हैव टू डू दैट? बिकॉज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से चीजें समझ में आ जाती है. यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको क्या बोलना है एग्जैक्टली. जैसे मैं आपको पूछ रही थी कि लैक ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल मतलब क्या, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, तो जितना आप मुझे समझा रहे हो ना 2-3 वर्ड्स में, उतना ही आपको लिखना है. ठीक है? जस्ट फ्रेम इट इन अ सेंटेंस सो दैट इट वुड बी 1 or 2 lines. That's it. Put an example with that. If you put an example with that, that will be very good. कि हाँ, आपने सब हेडिंग लिख दिया, आपने 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, आपने एग्जाम्पल भी लिख दिया यहाँ पे. सो दैट इज हाउ आई कैन रिलेट इट. तो 6 पॉइंट्स, मिनिमम 4 एग्जाम्पल्स यू हैव टू पुट इन ईच पॉइंट. यू हैव टू पुट 1 एग्जाम्पल. 1-2 पॉइंट्स के लिए नहीं आया एग्जाम्पल तो छोड़ दो. दिस विल गिव यू दैट 0.5 एक्स्ट्रा मार्क्स. ठीक है? तो 5 से आप 5.5 तक चले जा सकते हो. ठीक है? अगर 4 पॉइंट्स लिखे, नहीं याद आ रहे मुझे 6 पॉइंट्स, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे पर मैंने चारों पॉइंट्स में एग्जाम्पल दे दिया, तो भी एग्जामिनर खुश होके आपको 3 पॉइंट्स दे सकता है, 3 मार्क्स देगा, एटलीस्ट 2.5 मार्क्स देगा. ओके, सो एग्जाम्पल्स, पुटिंग डाउन द एग्जाम्पल्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर. गॉट इट? अभी वी ऑलवेज सी इन द मॉडल आंसर्स, या फिर आप टॉपर्स की कॉपीज देखोगे तो भी उसमें आपको दिखेगा कि एवरी टाइम दे पुट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर साइड. सो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन डालोगे आप एक्स्ट्रा? Way forward. यू कैन पुट वे फॉरवर्ड. ठीक है? अब यहाँ पे ना in the model answer they have also given government measures, steps taken by government or government measures. मतलब क्या government कर रही है इस चीजों के लिए. Now because the government is failing here, these accidents are happening. ठीक है? तो अवॉइड करो कि गवर्नमेंट मेजर्स बताओ, उससे अच्छा बताओ कि वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हो. कि क्या कर सकते हैं बताओ. Appointing the trained aviation professionals. नहीं, सी अपॉइंटमेंट नहीं लिखना है अभी आपको. अभी यहाँ पे लिखना है तुम्हें कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट. ठीक है? फॉर्मल होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. यस, वेरी गुड. चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. चेक एंड Enforcement. बैलेंस. ओके, वेट, चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? Ma'am, international standard के compliance को तो follow. ठीक है, चलो वो थर्ड पॉइंट डाल देंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम मैच करेंगे, कंप्लाई करेंगे. बट देन चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? चेक एंड बैलेंस तब होगा जब बनाने वाला कोई और हो, चलाने वाला कोई और हो, चेक करने वाला कोई और हो. करेक्ट है? Correct. अगर बोइंग कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, वही आके कल चेक करके जाएगी कि चेक सही चल रहा है क्या एयरक्राफ्ट, तो चलेगा?
नो नहीं, मैम। नहीं चलेगा इंडिपेंडेंट या और फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जर्वेशन करेक्ट इंडिपेंडेंट या थर्ड पार्टी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स should be given. करेक्ट फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई होने चाहिए। दैट्स इट। 3 वे फॉरवर्ड आपने डाल दिया। इफ यू Proper वांट यू कैन training ऑल्सो and regular audits में add कर yes सकते हैं. yes yeah you can put that in check and balances or you can also put a key यहाँ पे proper training. And what did you say more? Regular audits. And regular audits. Yes, regular third party audits. You should make sure that you're doing third party audits. ठीक है, 3 पॉइंट्स तो मिल गए आपको, 3-4 पॉइंट्स सॉर्टेड। इतने लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, आपको स्पेस ही कम पड़ेगा जब आप इतने 6 पॉइंट्स लिख दिए, उसको एक्सप्लेन कर दिया। वे फॉरवर्ड के लिए आपने 2-3 पॉइंट्स लिख के, इवन इफ यू डोंट हैव प्लेस टू एक्सप्लेन वे फॉरवर्ड पॉइंट्स, इट्स फाइन, आप अच्छे से बस उसको लिख दो वहीं पे पॉइंट्स मैम में। कैन यू राइट अपग्रेड सर्वेलेंस सिस्टम एटीसी इक्विपमेंट? सॉरी, अपग्रेड सर्वेलेंस सिस्टम एटीसी इक्विपमेंट. यू कैन पुट दैट डाउन। यस, ओके मैम. ठीक है। अभी वे फॉरवर्ड लिखने के बाद कंक्लूजन लिखना जरूरी है क्या? नो मैम. यस मैम। Yes, you have to write conclusion. Okay, in the model answers कभी कभी नहीं दिया रहता है conclusion, या फिर they skip the conclusion, which is fine. पर तुम लिखो, ठीक है, 2 लाइंस क्यों नहीं, but then you have to end the answers. ठीक है, अभी यहाँ पे I have wasted so much of space here, इसलिए मुझे यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, but conclusion should be written. जब आप कंक्लूजन ढूंढोगे, कंक्लूजन लिखोगे, आपको और 2 चीजें, 2 डेटा कुछ तो मिलेगा एक्स्ट्रा, और आप यहाँ पे लिखोगे। ये कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट। यस, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, इफ यू आर राइटिंग 10 to 20 क्वेश्चंस, अगर 2-3 क्वेश्चंस में स्किप कर दो चलेगा, ओके, पर ट्राई करना कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में यू आर राइटिंग कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड इज नॉट द कंक्लूजन। ओके, ट्राई टू राइट एटलीस्ट 2-3 लाइन्स। अभी कंक्लूजन क्या लिखोगे इसमें? मैम सब तो लिख दिया, वे फॉरवर्ड लिख दिया है, ये लिख दिया, वो लिख दिया, तो क्या लिखोगे कंक्लूजन? मैम कैन बी राइट तो फिर बोलो, कैन वी राइट के बाद पॉज क्यों ले रहे हो? India's civil sector is one of the faster growing in the world, with rising aircraft ensuring aviation safety. But we have need to improve. Someone else? एविएशन सेक्टर का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बता के हम इसके चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बता सकते हो, यू कैन सी द गिवन, बट यू कैन नॉट सी द चैलेंज। हाँ, एंड में बोल सकते हो देयर आर मेनी चैलेंजेस, वी हैव टू ओवरकम, यू कैन नॉट राइट द चैलेंजेस, बट यस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यू कैन टेल। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन ओके, वगैरह 1-2 पॉइंट्स ऐड करके हम एंड कर सकते हैं, पॉइंट्स नहीं, conclude पॉइंट्स कर नहीं ऐड सकते करने हैं. अभी। कंक्लूजन में देयर शुड बी नो पॉइंट्स, कंक्लूजन शुड बी अ पैराग्राफ ओनली। 2 लाइंस का हो तो भी चलेगा, बट देयर शुड बी नो पॉइंट्स। Compliance, the aviation sector should comply to the standard norms because it is about the lives of people. I mean, it is Okay, concerned yes, about lives of people. yes, you can put that. Good. Also, what Ankita said, also you can put ki economic significance डाल के you can end it. You can write कि India's aviation sector has seen incredible expansion, right? हमने क्या किया है? Recent expansion या government measures से हमने क्या किया है? Incredible expansion in what sector? In what aspect? In domestic airports, rising. Yes, Yes. rising Domestic domestic airports. airports and Making enlarging the access.
लोकल एक्सेस ज्यादा कर local रहे हैं, app. right? So these 2 points you can write it down. कि India's airport has seen recent expansion with respect to larger access to the population and operational airports. But with this comes the security and safety concerns which have to be taken care of. That's it. हो गया खत्म. समझा बच्चा लोग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, Yes, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बस लिखना है कि अभी यहाँ पे हम पॉजिटिव चीज बता रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन में कि भाई सिर्फ गंदा गंदा नहीं हो रहा है यहाँ पे. दिस इज द फर्स्ट एक्सीडेंट हैपेंड सिंस व्हाट, हाउ मेनी इयर्स इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ इंडिया में? कब हुआ था लास्ट? 2020. 2020. तो 5 साल के बाद हुआ है. Yes. It's very bad that this has happened, but if every year या हर एक महीने होता था, that means we are performing very much bad, right? 5 साल बाद हुआ है, which is very unfortunate, but that means कि 5 साल में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है. So you have to also say that कि भाई कि हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, we are doing access, लार्जर एक्सेस दे रहे हैं, हम ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स कर रहे हैं, छोटे छोटे रूरल गांव के मतलब रूरल एरियाज की साइड में भी एयरपोर्ट लाया जा रहा है. तो दिस इज वन थिंग. अभी ये तुम्हें लिखने के लिए जगह नहीं है, तो वी आर पुटिंग इन दिस कंक्लूजन इटसेल्फ कि वी आर डूइंग दिस, बट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट हियर. सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट, सो दैट शुड नॉट बी ओवरसाइट. डन? Yes, ma'am. खत्म चीज, ये करना है, ठीक है. अब ये तुम देख के लिखो, बिना देख के लिखो, ठीक है, पर तुम्हारे पास एक फॉर्मेट है. दिस इज हाउ आई एम सपोज टू राइट. Okay, see the question, identify what the context is, identify what the demand is, and make the format in your head first and then start writing it down. ठीक है? Next, what are the key challenges? एक second, let me read the chats. Major problem is in writing the introduction. Vaishnav. Good, everyone has written good. Alok is saying a major problem is in writing an introduction. वही तो बताया, आइडेंटिफाई करना है. क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम? Demand and macro नहीं, for introduction. for introduction. Yeah, data and Theme. receipt or something. Theme. Correct. We have to identify the theme. We have to identify the context. We have to identify the topic. किस टॉपिक के बारे में, किस कंटेक्स्ट के लिए पूछा गया है. If you identify these things, introduction should be based upon that. ठीक है? Now tell me, this is the second question. अब ये फटाफट करो चलो. What are the key challenges facing India's pension system? Suggest measures to ensure its sustainability and wider coverage. Abhi, what is the topic about? India's pension system. तो मतलब इसके बारे में लिखोगे आप इंट्रोडक्शन में, राइट? अभी व्हाट टू राइट इंट्रोडक्शन. Ma'am, we can write in the economic survey 25 to 26, pension assessed in मॉडल India. आंसर देख के नहीं बताना है मुझे, ये सजेशन. Yes, ma'am, तो गूगल से सर्च करके 17% GDP और नहीं, 80%. तुम नहीं करो, तुम मुझे बताओ यहाँ पे किसे लिखोगे. अगर गूगल से करना है तो वो तो तुम बाद में भी कर सकते हो. नाउ टेल मी, अभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीख रहे हैं, गूगल से नहीं देखना है. ओके मैम, मैंने डाटा निकाला था. नहीं, यू हैव डेटा, तुम लिखते तब समय करो. अभी मैं डेटा पूछ रही हूँ तुम्हें, मैं पूछ रही हूँ तुम क्या लिखोगे इसमें, तुम्हें खुद ब्रेनस्टॉर्म करके बताना है मुझे. Now we can define national pension system, means India's pension system.
Yes, you can write about the national pension system. What else? Mm, this one. You can write it. तो एक साइड में तुमने बता दिया इंडियन का पेंशन सिस्टम ऐसा है. What else can make your introduction look good? Can we write about ma'am EPFO? You cannot write about EPFO. No, I आप mean, लिख सकते can you हो कि mention EPFO? Yes, yes, you can mention. Ma'am, India's pension system plays a critical role in ensuring economic security for the population. क्या? Ma'am, pension system plays a critical role in the ensuring economic security for the elderly population. हाँ, आगे ये एक लाइन हो गया. And एंड people आगे can आप लिख दो. सी, जब आप when you start an introduction, it should not start at the negative note. yes, ma'am. ठीक है, जैसे हमने ये वाला भी देखा. With एविएशन this सेक्टर. principle, we ठीक है, can एविएशन make सेक्टर में वेट लेट हियर इट आउट. एविएशन सेक्टर में हमने लिखा क्या कि बस एक्सीडेंट ही होते जा रहे हैं. हमने बस रीसेंट क्रैश के बारे में बताया एंड देन वी सेड कि एविएशन सेक्टर का कुछ डेटा या फिर एविएशन सेक्टर कैसे हैंडल होता है इंडिया. दिस वी हैव रिटन इट डाउन. ओके, यू कैन नॉट से कि देयर आर लॉट ऑफ डेफिशिएंसी, बहुत ज्यादा चीजें हो रही है, बेकार है एविएशन सेक्टर इंडिया में, खत्म ही कर दो, कुछ मत रखो, ऐसे नहीं बता रहे हम. ठीक है, तो फर्स्ट जस्ट सेट द कंटेक्स्ट. बताओ, सिर्फ इंट्रोडक्शन में बताओ कि ओके नेशनल पेंशन सिस्टम ऐसा है और बहुत सारे चैलेंजेस है उस चीज. ठीक है, नाउ instead of repeating what the question is asking, what you can do is whenever such question is there where you can find lot of data, just try to find the data. ओके, नेशनल पेंशन सिस्टम है, इंडिया की पेंशन सिस्टम है. ठीक है, पर पेंशन सिस्टम कितना % हो रहा है. ठीक है, देयर वुड बी ऑल, मतलब ये क्वेश्चन आया मतलब देयर इज सम सर्वे दैट हैज टेकन प्लेस, राइट. कुछ ना कुछ तो डेटा होगा ही अवेलेबल, राइट. दिस इज वेयर यू हैव टू यूज द डेटा. ठीक है, कि इतना % पॉपुलेशन ही एनरोल्ड है पेंशन स्कीम में, ईपीएफओ में. ठीक है, इतना % ही जीडीपी का पेंशन के लिए जाता है. Okay, you can use this data. This is where you have to use the data in the introduction itself. This will make your introduction more better. ठीक है, अब ये पेंशन का डेटा, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपको यूज होगा ही कहीं ना कहीं पे तो, राइट. सो दस वन डेटा यू हैव टू रिमेम्बर. क्लियर. ठीक है, अभी उसका लॉजिक तुम लगाओ जैसे तुम्हें याद रखना है. ठीक है, यहाँ पे जैसे मॉडल आंसर में दिया है 17% ऑफ जीडीपी इन पेंशन एसेट्स एंड ओनली 12% ऑफ वर्कफोर्स कवर्स अंडर फॉर्मल सेक्टर. मतलब अराउंड 15% दोनों चीजें हैं. अप्रोक्सीमेशन यू कैन कीप 17% ऑफ जीडीपी इन पेंशन एसेट्स, 12% ऑफ वर्कफोर्स, मतलब 15% के इर्द गिर्द है ये दोनों चीजें. समझ रहा है? yes. So what you can remember is less than 15%. Okay, या फिर only around 15% workforce and GDP is involved in pension system. You don't have to remember now 17% and 12%. Logic समझ में आ गया? ठीक है, you have to remember things like that. क्योंकि आपको यही याद आएगा कि अरे कितना वर्कफोर्स था पेंशन सिस्टम में, तो आपको 12% याद नहीं आएगा. आपको याद आएगा कि 20% से तो 15% से तो कम था. ठीक है, और आपको यही लिखना है, अप्रोक्सीमेशन ही लिखना है अगर आपको नहीं याद आ रहा है डेटा. ओके, वर्क्स. दिस इज द डेटा दैट यू आर गोइंग टू Yes, पुट. ma'am. ओके, अब व्हाट विल बी द, हाउ विल यू स्टार्ट द बॉडी. We'll start with the key challenges. हेडिंग क्या लिखोगे? Key challenges facing India's pension system. गुड. Ma'am, purpose of a pension system and types of pension systems in India. यहाँ पे आएगा key challenges facing India's pension system. This is going to be your first heading. What will be your second heading after you write the points?
मैम यहाँ पे डिमांड दो है क्या? सजेस्ट मेजर्स टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड वाइडर कवरेज विल बाइफरकेट दिस क्या कैसे बाइफरकेट करोगे? measures to ensure sustainability, and then there will be one more point, measures to Okay. ensure wider coverage. ठीक है, Yes, ma'am. उसके major reach also. ठीक है। अभी एक चीज बताओ कि यहाँ पे दो डिमांड है, राइट? की चैलेंजेस Yes. और मेजर्स। अभी जैसे यहाँ पे लिखा था उन्होंने कि स्ट्रक्चरल रेगुलेटेड एफिशिएंसीज बताओ, ठीक है, बट ओवरलैप हो रहा था। तो यहाँ पे व्हेन यू आर सजेस्टिंग द मेजर्स कि क्या होने चाहिए, तो कैन यू बाइफरकेट दोज मेजर्स इन सस्टेनेबिलिटी एंड वाइड कवरेज? कर पाओगे? No, ma'am. नहीं, थोड़ा दिक्कत हो सकती. दिक्कत होगा, पर कर सकते हो, ठीक है? अगर 10 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, या चलो 6 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, और उसमें से 3 मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो अंडर सस्टेनेबिलिटी जाएंगे, 3 पॉइंट्स अंडर वाइडर कवरेज जाएंगे, देन राइट इट डाउन। अगर नहीं याद आ रहा है, नहीं लग रहा है, तो सीधा सीधा लिख दो मेजर्स टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड वाइडर कवरेज। ओके, अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज करना है कि जब तुम मेजर्स लिख रहे हो एंड आप 5 पॉइंट्स लिख रहे हो, यू आर नॉट बाइफरकेटिंग इट इन सस्टेनेबिलिटी वाइडर कवरेज, समझो। बट जो भी 5 पॉइंट्स लिखोगे, दोज पॉइंट्स शुड बी कवरिंग और शुड बी एड्रेसिंग सस्टेनेबिलिटी एंड वाइडर कवरेज। लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए और वाइडर कवरेज इंक्लूड होना चाहिए उसमें। तो इफ यू आर पुटिंग वन सजेशन, इफ दैट वन सजेशन इज गिविंग वाइडर कवरेज, ठीक है, अदर सजेशन इज गिविंग सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, और एक सजेशन जो वाइडर कवरेज देगा और एक सजेशन तो सस्टेनेबिलिटी का, ऐसे ही हैव टू पुट इट डाउन। समझ में आ रहा है? बच्चे क्या करते हैं की चैलेंजेस एड्रेस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे दिखता है चलो मेजर्स पूछा है तो मेजर्स लिख दो फटाफट। नहीं, मेजर्स पूछा है पर 2 एस्पेक्ट्स में पूछा है, सस्टेनेबिलिटी और वाइडर कवरेज। तो you have to make sure that the measures you are putting down, writing down, should address these 2 segments. Okay? ठीक है? अभी जो चैलेंजेस होंगे उसी को तुम टैकल करने के लिए मेजर्स लिखोगे। चैलेंजेस कुछ और ही लिख दिए हैं और मेजर्स कुछ और ही हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो, चैलेंजेस कैन बी सम डिफरेंट एंड मेजर्स कैन बी लिटिल डिफरेंट, बट ऐसे नहीं कि जो चैलेंजेस तुमने लिखे हैं और मेजर्स जो लिखे उससे चैलेंजेस सॉल्व ही नहीं हो रहे, एक भी चैलेंज, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? ओके, मैंने चैलेंजेस लिखे हैं सारे सोशल, पर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि नहीं सस्टेनेबिलिटी और वाइडर कवरेज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। दे शुड बी लिटिल रिलेटिव। ओके, चलो बताओ की चैलेंजेस फटाफट। Exclusion of informal sector. ओके, गवर्नमेंट कंपनीज में ही कॉन्ट्रेक्चुअल बहुत होता है, राइट? कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स, सो दे आर नॉट एनरोल्ड इन द ईपीएफओ आल्सो, राइट? तो इसकी वजह से एक्सक्लूजन हो जाता है उन लोगों का। बताओ। लिमिटेड कवरेज। लिमिटेड कवरेज मतलब मतलब स्कीम के अंदर ज्यादा कवरेज नहीं हो रहा, मींस इसके ओनली अंदर 13% वर्क पेंशन सिस्टम के अंदर, ओनली 13% वर्क फोर्स कवर हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है 97 तो वही तो 87%। हमें बताना है क्यों, चैलेंजेस बता रहे हैं ना, ये तो हम बता रहे हैं। Demographics raise can be the reason. Limited coverage has 2 reasons. One is लो which फाइनेंशियल Laharika has also given lack of awareness. पता ही फाइनेंशियल नहीं है लोगों को पेंशन स्कीम में एनरोल कैसे करना है, कौन सी पेंशन स्कीम है, if I am eligible for that pension scheme or not, all of these things people are not aware only about. दूसरा चीज क्या है लिमिटेड कवरेज का? Someone just told. प्लीज म्यूट कर लो, Can be the reason. म्यूट कर लो। कौन है यहाँ पे जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, तो प्लीज म्यूट कर दो। ओके,
मैं सबको म्यूट कर रही हूँ यहाँ पे. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ व्हेन यू वांट टू टॉक, बट जब नहीं बात कर रहे हो तब आप म्यूट कर. Demographic stress can be the reason. Yes. Demographic stress. Now, can you please explain what is the demographic stress? जैसे एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा रेज हो रही है तो Correct. तो गवर्नमेंट का जो फिजिकल बजट है उस पे भी स्ट्रेस आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है. correct, exactly. So as you know that we have assumed, not assumed, calculations के हिसाब से 2050 तक 30% of the population will be in the elderly population. ठीक है, जो सीनियर सिटीजन्स बन जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, मतलब हम जैसे लोग. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट्स योर एज, बट ओके. सो 2050 2060 तक, you know, lot of 30 to 40% of people are going to be dependent on the family. ठीक है, अगर उनका पेंशन, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, उनकी ये सारी चीजें नहीं है तो मतलब ये किस पे डिपेंडेंट होंगे? गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में. गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा. ठीक है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपकी भर्ती होगी तो ऑब्वियसली वहां पे सारे फैसिलिटीज आपको देने पड़ेंगे. मतलब द गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर कि इतना 30 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन के सारे मेडिकल इश्यूज द गवर्नमेंट हैज टू हैंडल इन द वेलफेयर स्कीम्स और इन द हॉस्पिटल्स एवरीथिंग. तो मतलब सबसे ज्यादा बर्डन हमारा हेल्थ पे जाएगा. ठीक है, फिजिकल बजट का फोर्स. सो ये चीजें हैं. तो डेमोग्राफिक स्ट्रेस इज वन ऑफ द इश्यूज. नेक्स्ट, व्हाट एल्स? Administrative challenges. Poor coordination between central and state schemes. एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके. सेंट्रल एंड सेक्टर स्कीम्स में State schemes. सॉरी, सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स में नो कोऑर्डिनेशन. यस, ओवरलैपिंग होता है. करप्शन क्या लिखोगे आप? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉमिसेस नहीं फुलफिल हो रही है. Okay, people are dependent more on the policies, right? जो फ्री में मिलती है. Instead of enrolling, they think that okay, ये करेगा कुछ हमारे लिए, वो करेगा कुछ हमारे लिए. ठीक है, तो dependency on policies. What else? Ma'am, inadequate pension. Inadequate Pensions, Pension low returns. low returns. Okay. Inadequate pension amount. Yes. Inadequate मुझे आगे का समझ नहीं आ रहा है. Inadequate Pension amount. okay. Got it. For Same elderly thing. Yes. Inadequate pension amount. मतलब क्या रिटर्न्स लो आ रहे हैं तो what do the people of जो हमारे एज के हैं या इस जनरेशन के हैं. एक सेकेंड. हाँ, तो एज आई वाज सेइंग कि some people who think कि यहाँ से returns less आ रहे हैं तो they will invest in SIPs, they'll invest in stock market, other things rather than investing the money in pension schemes. What else? Ma'am, our pension system is voluntary in nature. Voluntary means we have to opt in schemes. करेक्ट. वॉलेंटरी नेचर है. मतलब आई एम एम्प्लॉयड. ठीक है, तो मुझे टैक्स कंपलसरी है, राइट? बट मुझे पेंशन कंपलसरी नहीं है कि पेंशन स्कीम में आपको एनरोल करना ही है, राइट? सो देयर शुड बी दिस कंपल्शन, राइट, कि मिनिमम अमाउंट यू हैव टू पुट 350 रुपीज 500 रुपीज यू पुट इन द अकाउंट एवरी मंथ ऑफ योर पेंशन. ठीक है, पर वो होना चाहिए, राइट? तो वॉलेंटरी है, इसकी वजह से लोग नहीं जाते. प्लस देर आर नो टैक्स बेनिफिट्स. ठीक है, या फिर एटलीस्ट इंसेंटिव्स होने चाहिए कि आप पेंशन स्कीम में कर रहे हो इन्वेस्ट, दैट मीन्स योर टैक्स से आपको इतने पैसे या फिर वॉट एवर डिडक्शन विल बी एक्सक्लूडेड, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, वॉलेंटरी प्लस लेस डिजिटलाइजेशन. Yes, ma'am. The I'll give you enroll my example also.
माय अकाउंट, मेरा अकाउंट तो आई गेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो वहां पे था। तो आई वॉज नॉट एम्प्लॉयड एंड दे हैड ओपन माई अटल पेंशन योजना। आई डोंट नो, उनका कुछ तो रहेगा कि मंथली कितना करना रहता है, तो उन्होंने खुद ही खोल दिया था। ठीक है, एंड आई सेड ओके व्हेंस आई गेट एम्प्लॉयड, आई गेस इंजीनियरिंग के 1-2 ईयर बाद, व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर यूपीएससी, दे हैड जस्ट ओपन इट बिकॉज बहुत फ्रेंडली था वो, मतलब वी वर, माय मॉम्स होल बिजनेस अकाउंट वाज हैंडल्ड बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इसलिए दे ओपन दिस थिंग। अभी आई कुड नॉट ट्रांसफर देम थ्रू डिजिटलाइजेशन, ठीक है, जीपे से या फिर बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता था। नाउ आई हैड टू ओनली पे 350 रुपीज। ठीक है, सो इनिशियली फॉर द फर्स्ट 2-3 years when I was not employed, they used to cut the money from my mother's account and put into my Atal Pension Yojana. Okay, after that when I was employed, I said okay, now I'll pay 350-400 rupees, not a big issue, I'll pay it. But they said then you have to come to the bank every year or at least every month, और at least आप और एक अकाउंट खोलो, उसमें तुम ट्रांसफर करो और फिर वहां से हम कट करके ले। So then what will I do? Will I do this? I won't do it. I'll say keep your Atal Pension Yojana with yourself. आप एक तो डिजिटलाइजेशन करो, नहीं तो आप खुद आके मेरे से 350 रुपए लेके जाओ। ठीक है, मैं आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगी आप घर तक आए इसलिए। ठीक है, बट आई वोंट बी कमिंग एंड डूइंग दिस, राइट? बिकॉज आई नीड द पेंशन, आई नो, बट यू हैव दिस योजना, यू हैव क्रिएटेड दिस अकाउंट, ये सब कुछ है, तो यू शुड हैव दिस ऑप्शन ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, आई थिंक अभी बैंक्स में आ गया ये सारी चीज, बट देर आर मेनी बैंक्स हु डोंट हैव दिस। ठीक है, एंड because many banks don't have this, the rural people, how will they do it? Right? ठीक है, the people who are busy out there won't do it. They'll opt कि स्टॉक में डाल देते हैं पैसे, या फिर एसआईपी कर देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, ये कर लेंगे ना लोग। So this is where the challenge is. Correct? ठीक है, तो got how many challenges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसमें से 4-5 लिख दो, उसको एक्सप्लेन कर दो विथ एग्जाम्पल्स। नाउ एग्जाम्पल्स यहाँ पे तुम्हें याद नहीं आएंगे या फिर तुम्हें नहीं पता होगे, यही एग्जाम्पल्स तुम्हें कंटेंट में से देखना है। ठीक है, कि क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि उन्होंने दिया है गेस अटल पेंशन योजना का एग्जाम्पल दिया है। व्हाट इज दिस अटल पेंशन योजना? रीड दैट, राइट डाउन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से देयर। ठीक है, कि कितना 10 years हो गए अटल पेंशन योजना को, फिर भी देर इज लाइक अराउंड 5-6% ही लोग एनरोल्ड है उसमें, विच इज वेरी लेस, वेरी लेस। Right? Then they have given example of कि कैसे it's voluntary, right? Ours is voluntary. So in Japan it is compulsory. So some amount is always that is always cut down to keep it in your pensions account. That is good, right? मेरे पैसे मुझे मिलने वाले हैं बाद में, तो फिर I can keep some amount, right? You can increase some incentive, you can increase some benefits out of it, तब जाके फिर I am going to opt it, right? So these are the challenges. Now यहाँ पे पूरा पेज, सारा पेज मैंने challenges में भर दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि now we have more things to write. We have measures and we have to cover this, right? तो यहाँ पे अभी तुमको लिखना है measures. Okay. Now these measures should mostly address these, which will include sustainability, which will include sustainability and wider coverage. Okay, what will be this measures? Financial literacy, awareness, Financial literacy, awareness, digital infrastructure, digital infrastructure, very good. Then incentivization, The process to enroll should be simplified. procedures. ठीक है, plus मैम गवर्नमेंट अवेयरनेस कर दिया ना हम लोगों को, हम क्या awareness बोल camp. सकते हैं? अवेयरनेस कैंप ही यहाँ पे कर दिया मैंने मेंशन। वन स्कीम फॉर ऑल, या एटलीस्ट
अंडर वन ब्रैकेट दे शुड बी। Yes. ठीक है, ईपीएफओ Harmonizing भी scheme. है, ये भी है, अटल पेंशन योजना भी है, ऐसे 10,000 चीजें हैं। तो पीपल आर ऑलरेडी कंफ्यूज, दे आर कंफ्यूजिंग मोर। ठीक है, तो एटलीस्ट ब्रिंग एवरीथिंग अंडर वन ब्रैकेट और अंडर इन वन अम्ब्रेला, राइट? तो ऐसे कर सकते हैं। व्हाट एल्स? Flexibility to change options or switch options, because there are a lot of like in NPA scheme there are high risk options, and Okay. so Okay. so there should be flexibility. Okay. At the same time, flexibility to withdraw money, because a lot of people think that the amount will be locked. So that Correct. So we can, yes, in the flexibility you can access to the money या flexibility. Okay, you can explain it there. अभी ये सिर्फ मेंशन नहीं करना है, इसको भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये मेन डिमांड में पूछा गया है। ठीक है, हम खुद से नहीं डाल रहे इसको, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है हमारा ये, दिस इज अ डिमांड, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, एंड देन आई हैव ओनली गिवन हियर 2 पेजेस आई गेस, बट ये 15 मार्क है, मतलब 3 पेजेस मिलेंगे आपको, करेक्ट? ठीक है, एंड देन यू हैव टू एंड इट विद द कंक्लूजन। व्हाट विल बी द कंक्लूजन? व्हाट कैन बी द कंक्लूजन? the penetration of pension among masses is necessary to ensure social security. Yes, very good. Nice. Ma'am, as of 2050, India's elderly population will grow by 30%. It is pivotal to overcome such challenges by adopting global best practices. We can mention this country some example. That you can conclude it. mention in the measures on global good Okay, practices. Okay. Yes. Very good. ठीक है, हो गया, इस पर आप कर दो। सोशल सिक्योरिटी होने के लिए जरूरत है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, सो दैट वी आर ऑल फाइनेंशियली इंक्लूसिव एट द एंड। ठीक है, विकसित भारत 2047 दैट कैन बी अचीव स्मूथली। हो गया, Got it? इतना लिखोगे तो 7.5 मार्क्स तो मिलेंगे आउट ऑफ 50। 7.5 7.5 भी नहीं, 7, चलो 7 तो एटलीस्ट इतना अच्छे से लिखोगे तो लिखते नहीं हो इतना अच्छे से। ब्रेनस्टॉर्मिंग कभी कभी, अभी यू कैन सी इट्स बीन व्हाट 1 आवर कि हमने 2 क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्म किए, जिसमें तुम बोल रहे हो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ और फिर लिख रही हूँ। ठीक है, इफ यू डू इट ऑन योर ओन तो तुम 15 मिनट्स 10 मिनट्स में ब्रेनस्टॉर्म करोगे, 10 to 15 मिनट्स में लिखोगे। ठीक है, आधे घंटे में एक आंसर हो सकता है। एवरी डे यू हैव टू राइट 1 आंसर ऑन। सपोज टू डू दिस। ओके, चलो नाउ दिस इज द लास्ट एग्जांपल। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, हम इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे। आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना। Okay, now this is the question. Now the question is, the source to sea approach marks a paradigm shift in global and national water governance. ठीक है, पहले तो source to sea क्या होता है ये अगर पता ही नहीं है तो जाके पढ़ना है। ठीक है, पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है तो जाके फिर से पढ़ो। Okay, this approach marks a paradigm shift in global and national water governance. Now this is a statement, this is not a question. उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है। The question starts, critically analyze the relevance of this approach in the context of India's water resource challenges. Okay, now what is the topic? Introduction किसके बारे में आएगा? Ma'am, I guess it is about environment. About कौन बोल रहा environment. है? Your name I is not guess it given is in about iPad में। Yogesh. Okay, it fine. is about the riverine source जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है एंड एंड सी में होती है। राइट, रिवर ग्लेशियर जहां से स्टार्ट होता है और जहां तक हाँ। जाता है, मतलब सोर्स से लेके सी तक। तो हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस, हाउ कैन वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पाथ, राइट? तो ये पूछा गया है, तो ये पूछा नहीं गया है, ये इसका मीनिंग है सोर्स टू सीक। तो यू कैन गिव 2 थिंग्स इन दिस इंट्रोडक्शन। 1 कि व्हाट इज दिस सोर्स टू सीक, explain your, ठीक है, introduction, and in the introduction itself give the water
challenges that we are facing. ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्स शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस बीइंग फेस्ड. इतना एक्सप्लेन नहीं करना, आई एम जस्ट टेलिंग. ठीक है, तो सोर्स टू सी कर दिया एंड उसी में आपने बता दिया कि दिस अप्रोच इज नेसेसरी फॉर फेसिंग और टू ओवरकम द वाटर रिसोर्स चैलेंजेस. एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद द आंसर विद द बॉडी. ठीक है, अभी बॉडी में क्या आएगा? India's water resource challenges. क्या क्या क्या? India's water resource challenges. What is the challenges of India's water? तो वो आएगा पहले हेडिंग में. First, they are trying to tell, like, critically analyze. So first we'll understand, or first we'll try to explain the pros of doing this. And then the cons, or rather the negative aspects of doing this, why this is ठीक है, so first difficult. you will tell the challenges first and then pros and cons. Okay. Yeah. So this can be done, but पहले हमें वो बताना है जो उन्होंने एक्चुअल में पूछा है. ठीक है, critically analyze what they are asking. The relevance of the approach. ठीक है, तो पहले लिखना है relevance of this approach से तुम S2S approach भी लिख सकते हो. Relevance of S2S approach in water resource challenge. ठीक है, then you have to write down the water resources का relevance कैसे होगा इससे, relevance क्या होगा इस approach से. Then because it is written critically analyze and there cannot be only one demand. 15 मार्क के क्वेश्चन मतलब एक डिमांड तो नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे challenges. ओके, या फिर जैसे दीपिका सेड pros and cons, तो you cannot write pros and cons, you can write issues. Okay, challenges या फिर issues. And then because you have written challenges and issues, you have to also suggest measures or way forward. How many headings? 1, 2, 3. 3 headings आ गए. यहाँ पे एक ही मेंशन किया है हेडिंग रेलेवेंस, करेक्ट, पर हमने कितने लिख दिए? हमने 3 लिख दिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है क्रिटिकली एनालाइज. सो यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. तो आपको चैलेंजेस, इश्यूज भी बताना है, आपको मेजर्स, वे फॉरवर्ड भी बताना है, आपको रेलेवेंस भी बताना है. ठीक है, इस अप्रोच. गॉट इट? ओके, नाउ we have addressed this critically analyzed thing, but they have also given importance to this sentence. ठीक है, उन्होंने सेंटेंस को भी दिखाया. तो यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो कि जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, इफ यू राइट द इंट्रोडक्शन अबाउट द वाटर रिसोर्सेस, इंडियन वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, उस चैलेंजेस के बारे में लिख दिया कि फिलहाल क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड आप कुछ डेटा लिख दिया. फिर आप और एक छोटा पैराग्राफ लिख सकते हो वेयर यू आर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज दिस सोर्स टू सी. ओके, व्हाई? बिकॉज वी हैव टू गिव जस्टिस टू दिस स्टेटमेंट, कि उन्होंने स्टेटमेंट को भी, स्टेटमेंट भी है क्वेश्चन में, राइट? दे हैव रिटन द स्टेटमेंट. सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग अबाउट द स्टेटमेंट ऑल्सो. अगर आप इंट्रोडक्शन ही बड़ा लिख दो, इंट्रोडक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, देन देयर इज नो रीजन टू राइट एनीथिंग एल्स. बट इफ यू आर राइटिंग द इंट्रोडक्शन अबाउट समथिंग एल्स रिलेटिव टू वाटर रिसोर्स चैलेंजेस, तो एटलीस्ट सोर्स टू सी के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दो, सो दैट द स्टेटमेंट इज ऑल्सो एड्रेस्ड इन योर आंसर. Then you start with the relevance of the approach. Then the challenges, your issues, and the measures or way forward, or what the government measures or steps. And then end it with the conclusion. Done? So this is how you're supposed to address each and every question. Give at least minimum 1 hour to Samachar Manthan in your daily routine, or at least at the weekends for the working professionals, where you have to make sure कि आप आपका जो
पढ़ रहे हो वो कंटेंट, और उसके बाद एटलीस्ट 15, 20, 30 मिनट्स यू आर गिविंग टू वन आंसर. Initially, time लगेगा, but trust me, once you are comfortable with this approach, once you are comfortable with answer writing, it will take mere 7 to 10 minutes to write one answer. And this has happened with many students. Okay, it's easy. अभी टफ लगता है, बाद में आप दो बोलते हो, चलो क्वेश्चन बताओ, मैं तुरंत बताती हूँ कैसे लिखना है. ऐसे करोगे आप. Yeah, it's easy. But the initial process, you have to start doing this. If you don't start it, I cannot help you with it. Okay, there are many students I can see here who have, जो बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं. You guys tell कि कैसे you have make sure कि आप खुद देख रहे हो ना कि कैसे आपने पहले लिखते थे आंसर्स and how you are writing it now, how you are approaching the answers. Tell the students who have initially enrolled and who are not writing answers. I want you to tell them. कौन किसने आंसर्स लिखे हैं. योगेश्वर, you can tell the experience. Ravi, यशवेंद्र, अंकिता, तका, जो लिखते हैं आंसर्स वो बताओ प्लीज. What were the issues first? मैम जैसे अभी मैम अंकिता, let's जैसे भी start. क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अभी ज्यादा टाइम सोचना नहीं पड़ता कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. वी जस्ट पिक अप द कीवर्ड्स एंड देन Correct. जैसे पहले बहुत सोचना पड़ता था कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या है. तो Correct. अभी जैसे प्रैक्टिस करने के बाद अभी समझ में आया कि व्हाट इज द कोर डिमांड ऑफ क्वेश्चन, और उस पे स्टिक करके हम कैसे इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं. Right. Like when we have to add the data, when we have to Hmm. simply give the definition, where we have to add the how we can relate it with the current issue. Right. तो ना भी relevance After समझ that में आने how, लगता है. हाँ आफ्टर दैट कि जैसे क्रिटिकली एनालाइज ही बोला है तो हमें उसके चैलेंजेस भी ऐड करने हैं, ऑल्दो Correct. नहीं पूछा है. तो Hmm. ये सब चीजें अभी सोचनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली अच्छा. समझ में आ जाती है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. Correct. अबाउट द कंटेंट इज लाइक कि जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम Content उसको आएगा. substantiate, हाँ, करते जाएंगे. जैसे अभी सेकेंड स्टेज चल रहा है मेरा आंसर राइटिंग का, कि जैसे अभी पहले तो ओपन बुक ही मैंने आंसर्स लिखे फर्स्ट 3 मंथ्स. अभी Right. ऐसा फेज है कि अभी मैं ब्रेनस्टॉर्म करके लिख पा रही हूँ, बट उसको सिर्फ अभी मुझे सब्सटेंशिएट करना है एग्जाम्पल्स के साथ, डेटा के साथ. तो ये Correct. चेंजेस आ गए हैं रेगुलर लिखने से. Right. Regular लिखने से. So this is the change that you find. ठीक है. लिखोगे पहले it will be difficult. पहले you will fail in this, but you will progress eventually. ठीक है. Yes, योगेश. मैम जस्ट 1 मिनट. क्या है? हाँ, दरवाजा. तक कोई और. रवि, तुम बताओ एक्सपीरियंस तब तक. हाँ मैम, अभी तो मैं आइडेंटिफाई कर ले रहा हूँ डिमांड्स एंड माइक्रो थीम्स को, एंड ऑल्सो Yes. एंड सम एक्सटेंड आई कैन डू ब्रेनस्टॉर्म ऑल्सो, बट लैक ऑफ डेटा, यू नो, That डेटा remains. फिर नहीं हो After पाता. you complete, after you keep on reading, तो वो data तो it will come to you eventually. But you understand कि initially आप कैसे लिख रहे होते, अब अभी कैसे लिख रहे हो. प्रोग्रेस बहुत है, बहुत अच्छा है. बहुत है. Right? So that good. कॉन्फिडेंस तो पहले बिल्कुल नहीं था, अब तो ठीक है. कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई बी लाइक आई कैन टैकल दिस क्वेश्चन. Right, right. So that is more important, right? कल प्रीलिम्स पास हो गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी क्या. You would not be blank. ठीक है. और हमें पास होना ही है. तो prepare for your means, prepare for your answer writing as if you're going to give the next means. सम क्वेश्चन आई फील लाइक कुछ इम्प्लिसिट डिमांड रहता है, वो समझ नहीं आ पाता बस. धीरे धीरे आएगा. ठीक है. आता है समझ में. एटलीस्ट तुम्हें पता है कि इसमें इम्प्लिसिट डिमांड है, मुझे उसको ढूंढना है. ब्लैंक तो नहीं रहते ना अभी. हाँ. That is also progress.
एंड यू विल फाइंड मोर चैलेंजेस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हो गया फिर अभी मैं आई एम एबल टू राइट एवरीथिंग. यू विल फाइंड न्यू चैलेंजेस. अभी और मार्क्स बढ़ाने हैं तो उसमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो कैसे लाने हैं. दीज ऑल क्वेश्चंस आर ऑल्सो टैकल्ड. ठीक है, पर जब तक तुम ये फेज नहीं कवर करोगे तब तक आगे के फेजेस पे नहीं जाओगे, एंड देन यू कैन नॉट इम्प्रूव ऑन दोज फेजेस. Right? So writing answers is important, right? Any kind of answer you want to write. Okay, write it via Samachar Manthan, write it via your GS tests, anything, but write it. Okay, understand the importance of answer writing, understand the depth analysis, the brainstorming that you're going to do, which is going to help you in your prelims. Okay? Okay. Chalo then, I think I have made my point. I have made you understand. Did you understand how are we supposed to answer right? Yeah, Yes, sure. ma'am. So, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Great, great. Yes, Chalo. Then I think my job is done here. So I have to just make sure that you are comfortable writing answers. Do not fear. Okay, you are going to progress. Just be consistent in it. Just be consistent in achieving your targets also जो दिए हैं मैंने, जो तुमने खुद सेट किए हैं खुद के लिए. So just keep on doing that and believe in the process. Okay, be little consistent, guys. थोड़ा push yourself hard. Yes, ma'am. Okay. Yogesh, do you have anything to share? Yes, ma'am. Yes. मुझे बताना. When I was starting answer writing, the starting phase, I guess February, I was frightening. How I will start. Then I was doing means मैं क्या करता था मैम पहले क्वेश्चन हिंदी लिखता में था. बोलो चलेगा. हाँ, हम्म. डिस्टर्बेंस है ना घर के आजू बाजू. अच्छा अच्छा. प्रॉपर बारिश आ रही है बहुत जोर से बाहर. ओके ओके, हाँ बोलो. तो पहले डर लगता था कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करें. तो फिर मैं ओपन बुक मीन्स समाधान मंचर लेके बैठता था और क्वेश्चंस लेके बैठता था. वहां से क्या क्या पिक करना है, एक्सप्लिसिट क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है और क्या क्या पिक कर रहा है. और फिर सर जो समाचार मंत्र के एक पीडीएफ भी आती थी बाद में, वो करके फिर मैं उसका फ्रेमवर्क बनाता था. फिर वो लिखता था. मीन्स फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट राइटिंग डायरेक्टली तो आंसर. फर्स्ट आई वाज मेकिंग फ्रेमवर्क एज यू टोल्ड ना मैम. फर्स्ट Correct. फ्रेमवर्क हाउ टू मेक इंट्रो बॉडी कंक्लूजन. तो फिर आई वाज मेकिंग सब हेडिंग बनाता था. फिर इस हेडिंग में इतने इतने सब हेडिंग पॉइंट देने हैं, Correct. इतने इतने पॉइंट देने हैं. फिर that's like I progress in 1-2 months 3 months like this starting phase. Now अभी क्या मैं सेम फ्रेमवर्क बनाता हूँ मैम. पॉइंट्स लिखता हूँ, सब पॉइंट्स, सब हेडिंग. और मैं अभी ओपन बुक नहीं लिखता. आई हैव टू बाय हार्ट दैट Correct. वन आंसर डेली. Correct. एट मॉर्निंग आई एम बार्डिंग वन आंसर एंड एट नाइट मैं लिखता था वो पूरा. वैसे बराबर. मैं 5 days 5 आंसर लिखता हूँ अभी भी सेम. Right. So अभी if you ask me, तो I have seen these people पूरा जर्नी कैसे they were afraid. I had to push them कि लिखो आंसर लिखो. ठीक है, ओपन बुक क्यों नहीं, पर देख के लिखो, पर लिखो. ठीक है, now they are at the stage which is way much more better than what they were initially. ठीक है यस ना. मैम. अभी डर बहुत नहीं ही, लगता. हाँ अभी डर नहीं लगता है. तो यही होता है. ठीक है, एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ चीजों से तो यू वोंट बी फ्राइटेंड बाय देम. ठीक है. नाउ आई गेस योगेश इज ऑल्सो इन दिस मेन स्टेज नाउ. अभी वो मेंस की पढ़ाई कर रहा है. तो रिसेंटली ओनली आई सॉ हिज आंसर. लाइक ये क्या नोट्स लिखे आंसर्स लिखे. बोले कि मैम अभी आंसर्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस नोट पॉइंटिंग में ही कर रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज ही नोज हाउ टू डू द आंसर राइटिंग. ठीक है, तो सम बट देन आई ऑल्सो टोल्ड हिम कि आंसर राइटिंग करो. ठीक है, वो भूलना नहीं चाहिए. नोट मेकिंग तो होगा ही इन द फॉर्मेट ऑफ आंसर, बट एटलीस्ट यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग द आंसर्स. सो लाइक दिस you get so much comfortable with it that you yourself challenge yourself कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आने तो I will be able to tackle it, and this is what is needed in means में आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे नहीं. You have to brainstorm yourself. ठीक है, but this will work, and believe me, this answer writing practice is going to help you a lot. Okay, got it? Yes ma'am. Okay, chalo. Yes, ma'am. Okay, then guys, we'll wrap this session and start writing answers. That's what I want to do. Okay, chalo. Okay. Okay. Thank you, Good ma'am. night. Welcome. Bye bye, guys.